So last time we have discussed about the health, reproductive health, and under the topic of reproductive health we have discussed about the STDs, sexually transmitted disease, and then we are going to discuss about the topic that is contraception. तो इस वाले क्लास में हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानेंगे. And we have already defined the contraception as the method to prevent fertilization. Or we can say that prevent the fusion of sperm with ovum. Sperm को ओवम से फ्यूज करने के लिए प्रिवेंट करने वाले मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन. इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. एंड द मेथड्स यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्शन इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं. And the contraceptive methods can be broadly classified 4 categories. इनको जो है classified into 4 categories. टोटली जो है 4 कैटेगरी में हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं. ये 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं ये जानते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी होता है आपका फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर. देन सेकेंड वन इज द केमिकल मेथड. सेकेंड वन द केमिकल मेथड. द third method is the IUCDs. IUCDs is the third method of contraception, while the fourth is the surgical method. Fourth method involved in contraception as contraceptive method is the surgical method. So these are the 4 broad category of contraceptive methods, and some point related to the physical barrier method we have discussed in previous lecture. So physical barrier method, the principle behind the physical barrier method, it is to prevent or to check the sperm to go enter into the female reproductive tract. So to ensure the fusion of sperm with ovum do not take place. इसके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है फिजिकल बैरियर मेथड का, ये होता है कि स्पर्म को चेक किया जाता है आइदर आउटसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और इन मिडिल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो वेरियस डिवाइसेस यूज्ड एज फिजिकल बैरियर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, एंड इन दिस physical barrier technique we can give the example as the example of condom, which is used for both male as well as female. The next is the diaphragm, then cervical cap. So only the condom is preferred for both male as well as female, but these two, diaphragm and cervical cap, it is only responsible for the female, or it is only used by female. So these are the list of physical barrier method used as contraception. The second category of contraception or contraceptive method, it is the chemical method. So chemical method involve the use of some medicine to prevent
the process of fertilization or to check the process of implantation after fertilization। तो यहाँ पे आप जो है दोनों चीज़ देख सकते हैं, या तो यहाँ पे डिफिनीशन थोड़ा सा यूज करता है बिकॉज द केमिकल मेथड इन्वॉल्व टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एज वेल एज टू स्टॉप द इम्प्लांटेशन जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी यूज़ हो सकता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी यूज़ हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के पहले जब यूज़ होगा देन इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, स्पर्म को या तो किल कर देगा और ओवम को जो है ओवम विल नॉट बी एबल टू ओवुलेट और रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू द ओविडक्ट, ओवरी से ओविडक्ट में जाने से इसको प्रिवेंट कर सकता है। सो टू एंश्योर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। सो इन क्लिनिकल मेथड द डिवाइसेस यूज्ड एज इट इज द oral pills। Number of oral pills used for the used as a contraception in the form of chemical method। Okay, so what is the principle behind the chemical method? The principle behind the chemical method is either to prevent the ovulation process or to kill द स्पर्म। बहुत सारे केमिकल्स जो है स्पर्मिसाइडल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जस्ट बिफोर कॉपुलेशन द केमिकल्स कैन बी टेकन बाय द फीमेल टू डिस्ट्रॉय द स्पर्म विच इज़ रिलीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर इंसेमिनेशन और ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के समय जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जाते हैं उसको या तो किल कर दिया जाता है या फिर दूसरा जो प्रिंसिपल होता है दैट इज़ टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। इसलिए जो है ओवम को ओवरी से ओविडक्ट में रिलीज होने के लिए प्रिवेंट किया जाता है। जैसे जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आते हैं लाइक सहेली पिल्स जो है बहुत ही कॉमन पिल्स है, मालाडी, ये सभी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये रेगुलर वे में कंटिन्यू लेना होता है और ये करते क्या है कि बॉडी के हार्मोन लेवल को जो है चेंज कर देते हैं। होता ये है कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए जो है हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये दोनों हार्मोन को जो है के रिलीज को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इसके लिए जो है दूसरे हार्मोन का ग्रुप होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो उस समय FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका रिलीज नहीं होता है। FSH जो है और LH ये दोनों को गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं विच इज़ रिलीज फ्रॉम आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये चैप्टर आपका जो है डिडक्ट हो चुका है, नहीं तो इसके बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एंडोक्राइन सिस्टम वैसे थोड़ा सा आपको बताया भी गया है, ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। तो वहाँ पे आपको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन के बारे में बताया गया वहाँ पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होता है जिसको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, इसमें दो होते हैं FSH और LH। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द ओविडक्ट। तो जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्लेस आपको बताया जा चुका है, इट इज़ द ओविडक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो जो पिल्स दिया जाता है ओरल पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ टू प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन को प्रिवेंट करना। और ओवुलेशन नहीं हुआ तो ये जो आगे का प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस भी नहीं होता है ऐसे समय में। तो ओवुलेशन ओवम जब रिलीज नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट इज द IUCDs। IUCDs the full form of IUCDs it is the intrauterine contraceptive devices। Intrauterine contraceptive devices, and these intrauterine contraceptive devices specially placed in the uterus, so they are known as intrauterine। ये जो है इनका जो प्लेसमेंट होता है
ऐसे डिवाइस का IUCDs जो है छोटे से डिवाइस होते हैं जिनको प्लेस किया जाता है इन द यूट्रस, तो इसलिए इसको इंट्रा यूटेराइन बोला गया है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। तो IUCDs में जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप करेंगे दैट इज कॉपर टी। कॉपर टी में आपका जो है एग्जाम्पल जब देखेंगे तो इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा CuT7, okay, CuT7, these are the copper containing IUCDs। तो ये IUCDs जो है करते क्या है, इनको कॉपर टी या CuT और Cu7 को यूट्रस में प्लेस किया जाता है एंड दे कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द कॉपर आयन फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। तो ये कॉपर आयन जो रिलीज करते हैं दैट कॉपर आयन रिस्पॉन्सिबल टू आइदर टू किल और टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। और ये आपको बताना जरूरी होगा कि फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन द स्पर्म मोर्टेलिटी शुड बी ऑप्टिमम। ओके, स्पर्म की मोर्टेलिटी जो है ऑप्टिमम होना जरूरी होता है। तो ऐसे केस में जब कॉपर क्या कर रहा है कि स्पर्म के मोर्टेलिटी को या तो रिड्यूस कर दे रहा है या फिर स्पर्म को किल कर दे रहा है, तो ये जो है क्या लीड करेगा द फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस। जब वो स्पर्म में मोर्टेलिटी नहीं रहेगा तो वो जो है ओविडक्ट में नहीं पहुंच पाएगा, या ओविडक्ट में पहुंच भी पाएगा तो वो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, मतलब ओवम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाएगा IUCDs। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इट इज द सर्जिकल मेथड। सो सर्जिकल मेथड एज द नेम इट इन्वॉल्व द सर्जरी, ओके, सर्जिकल प्रोसेस टू check the pathway of the gametes, either female gamete or male gamete। ये करता क्या है सर्जिकल मेथड, ये पाथवे को चेक कर देता है। चेक द पाथवे ऑफ स्पर्म और ओवम। ओके, ये स्पर्म या फिर ओवम के पाथवे को क्या कर देता है, ये चेक कर देता है, मतलब बंद कर देगा स्पर्म और ओवम। और दूसरे वर्ड में ये कह सके कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इस बेसिस फॉर मेल गैमेट द पाथवे ऑफ मेल गैमेट एंड द पाथवे ऑफ फीमेल गैमेट, इस बेसिस पर जो है सर्जिकल मेथड दो तरह का होता है। इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। There are two method or two sub-category of surgical method on the basis of the pathway of male gamete और the pathway of female gamete। तो देखिए ये जो फोर्थ का हम अदर कैटेगरी स्टडी करेंगे, तो पाथवे ऑफ मेल गैमेट को जब चेक किया जाता है तो ऐसे सर्जिकल मेथड को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। सो पाथवे ऑफ मेल गैमेट और पाथवे ऑफ स्पर्म इट इज नोन एज वैस डिफरेंस। ओके, इसको हम वैस डिफरेंस बोलते हैं। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया वहाँ पे आपको बताया गया था अलग अलग पार्ट्स के बारे में कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है। मीन्स फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म ट्रांसफर टू द इजाकुलेटरी डक्ट थ्रू विच डक्ट। तो डक्ट कौन सा है, वैस डिफरेंस, उसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। तो वैस डिफरेंस से ही ये टर्म लिया गया है वैसेक्टोमी, वैस। ओके, तो वैस डिफरेंस जब चेक किया जाता है, वैस डिफरेंस को रोका जाता है टू ट्रांसफर स्पर्म, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में होता क्या है, वैसेक्टोमी इन्वॉल्व
the making cut of vast difference and rejoining making up of vast difference leads to separation. Okay, and separation along with tiding separately both end. तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि वैस्ट डिफरेंस को बीच से कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद जो दो एंड बनता है, जैसे यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे अगर कट लगाया गया तो ये दोनों अलग हो गए और दोनों को जो है फिर से क्या किया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, सेपरेटली धागे से बांध दिया जाता है। तो ऐसे में जब टाइट कर दिया जाएगा तो उनके बीच का जो कनेक्शन है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब कनेक्शन ही नहीं रह जाएगा, वैस्ट डिफरेंस जो है पाथ में नहीं रह जाएगा, तो ऐसे केस में स्पर्म रिलीज तो होगा टेस्टिस से, बट ये स्पर्म जो है इजाकुलेटरी डक्ट में नहीं आएगा और इजाकुलेटरी डक्ट में नहीं आएगा तो जो सीमेन होगा उस सीमेन में स्पर्म विल नॉट प्रेजेंट। तो स्पर्म नहीं प्रेजेंट होगा और स्पर्म जब नहीं होगा सीमेन में, सो इट डू नॉट अलाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन प्रोसेस जो है नहीं होगा। तो ये तो रहा आपका वैसेक्टोमी। दूसरा जो है वैसेक्टोमी जो होता है वो कहाँ पे होता है, मेल इंडिविजुअल में। ओके, और मेल इंडिविजुअल vasectomy is for man, but the second is the tubectomy, and the tubectomy is for the women. Okay, women are allowed to tubectomy. तो यहाँ पे देखिए tubectomy ट्यूब टर्म आया है, तो in female or the pathway of female gamete, it is what? It is the fallopian tube or the oviduct. So this term is taken from the fallopian tube. Okay, tubectomy term is taken from the fallopian tube. Fallopian tube से इसको लिया गया है। Means ये टर्म से क्लियर हो रहा है कि फैलोपियन ट्यूब को सेम प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस यहाँ पे वैसेक्टोमी में किया गया वही सेम प्रोसेस कटिंग, सेपरेशन एंड टाइडिंग, कटिंग, separation and tiding of fallopian tube in female. Cutting, separation and tiding in female of what? The fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब को कट करके सेपरेट किया जाता है और उसकी अगेन टाइटिंग कर दी जाती है फीमेल में। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। और ट्यूबिक्टोमी में होगा क्या कि जब ट्यूबिक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके सेपरेट कर दिया गया और टाइट कर दिया गया तो कनेक्शन क्या हो गया, रुक गया। तो फैलोपियन ट्यूब में ओवम तो आएगा बट स्पर्म जो है उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, और स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। ओवम जो है आएगा, उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन द ओवम बिकम्स डीजनरेट। सेम इन द केस ऑफ वैसेक्टोमी, द स्पर्म विल बी फॉर्म इन टेस्टिस एंड आल्सो इट रिलीज, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द वैस्ट डिफरेंस इनटू द इजाकुलेटरी डक्ट। तो जब ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, सो द स्पर्म कैन नॉट बी कम्स आउट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये जो है वैस्ट डिफरेंस जो कि टेस्टिस साइड में वैस्ट डिफरेंस होगा उसी में
ये रिलीज़ होगा और वहीं पे डिजनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा ये खा दिया जाएगा, मतलब इसका ऑटोलिसिस हो जाएगा। सो इन दिस वे we have completed the topic that is contraception along with the various type of contraceptive methods.